कितनी बार लोग आते हैं और वो कहते हैं मैंने इस इंसान को बहुत प्यार किया, बट दे डोंट रेसिप्रोकेट दैट लव, दे डोंट डू एनीथिंग बैक फॉर मी। या फिर आपके कोई कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, फियर रिलेटेड इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास हैं जो आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई मी डू पास्ट लाइफ हीलिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इशू। Hello, Namaste and Jai Hind. Welcome to yet another episode of Success Habits in conversation with me, life coach समीर अजमानी। ऐसे लोगों की कहानी उन्हीं की ज़बानी मैं आप तक पहुंचाता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अभ्यास से जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है और आज दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। I am extremely happy to introduce our guest today, the ever smiling Miss Parul P. Agarwal. Welcome, ma'am. Thank you so much for this warm welcome. आज आपसे बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। I am also looking forward to this conversation. Yes, ma'am. Miss Parul P. Agarwal is a multifaceted and multi-talented personality who specializes in tarot reading, numerology, past life healing, crystal healing, switch words, color therapy, and she's a spiritual coach too. She's the director of Your Higher Self, her institute, where she conducts comprehensive certified courses and workshops in the above healing modalities. Ms. Agarwal has featured in various TV programs, magazines, newspapers, and radio shows too. Her clientele boasts of the well-known names from media to corporate to Bollywood to politics and several page 3 personalities. She has bagged many accolades, honors, and awards for her contribution in the field of occult sciences, spiritual and healing modalities. To mention a few, she's won the Tarot Diva Award, Women's Achievers Award, Icons and Crusaders Award, and she's also been part of the live tarot sessions at 104 Fever FM radio. Let's speak to her and learn from her. Thank you so much. मैम, पहले तो ये बताइए, हाउ डिड यू फर्स्ट बिकम इंटरेस्टेड इन टैरो कार्ड रीडिंग एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू इट एज अ प्रोफेशन? सो जैसे बचपन में हमेशा हम सबको शौक होता है, क्यूरियोसिटी होती है, जानने के लिए अपने बारे में हम हाथ दिखाते हैं. We want to find out, Yeah. So this is how my curiosity got me attracted to tarot. Okay. तो मैंने जो फर्स्ट टैरो का जब डेक देखा था, I was very excited that how can a card predict my past, present and future? And that curiosity, motivated me to do a first course. So जो मैंने पहला कोर्स किया था, I still remember I did it when I was expecting my first child. Okay. And I did it as a hobby. I did it simply to learn because I was very fascinated by the tarot cards. And then I started doing it for friends and family. Okay. जब थोड़ा टाइम बीता and people started coming and telling me कि आपकी predictions बहुत अच्छी होती हैं, आप इसे professionally क्यों नहीं करते? Okay. Then it made me wonder that why don't I take it as a proper profession? And that's how my professional journey started. Wonderful. So that brings me to the next question. What specific tarot decks do you use and why did you choose them? So every tarot healer or tarot reader uses a variety of decks. They can even use a one deck or multiple decks based upon their intuition. Okay. So every tarot deck has a different energy. So every time I feel I'm drawn to a particular deck or its energy, or I feel that it can add value to my existing decks or my reading, I definitely buy it. So over the years I have collected a lot of decks, and I've even lost count of how many decks I own. But then every time I feel that there is some deck which I am drawn to, I simply just pick it as per my intuition. Wonderful. Ma'am, how do you handle challenging or negative cards during a reading? And how do you help clients navigate difficult messages? Well, Sameer ji, I don't think there are any negative cards or any negative readings. Achha. What I feel is that tarot gives you a glimpse of your reality. So every time there is some aspect that you are trying to run away from, so it will give you a clarity on that aspect.
Okay. So I really believe that there are no readings, it's just how you perceive those cards, you know. So I always believe that tarot cards jo hote hain, so it's not positive or negative, it depends upon how you interpret the cards depending upon the question of the client or the situation of the client. So the interpretation is the important aspect. Yes, it's the interpretation. एक जो हम सीमिंगली आप जिसे पॉजिटिव कार्ड कहते हैं, वही कार्ड अगर एक स्प्रेड के अंदर जिस पोजीशन में हो, इट कैन गिव इट कैन हैव अ यू नो डिफरेंट सिनेरियो फॉर द क्लाइंट, एंड वही कार्ड किसी और सिनेरियो में कार्ड को एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बता सकता है. ओके मैम, यू आर अ पास्ट लाइफ हीलर, राइट? सो इसके बारे में कुछ बताइए. हाउ डू यू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट एनीबॉडीज पास्ट लाइफ? ओके, सो सबसे पहले मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज पास्ट लाइफ हीलिंग. बिकॉज पास्ट लाइफ हीलिंग जो होती है वो बेसिकली इट इज योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग. Okay. It is this healing, it happens at a subconscious level. So now what happens is every time you are dealing with some issue in your life जिसके लिए आपके पास कोई आंसर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर क्लाइंट्स दैट कम टू मी एंड टेल मी कि मैम मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा करता हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी कुछ बुरा नहीं सोचा, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, यू नो. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन पीपल्स माइंड. सो ऐसे केसेस में वी एक्सेस योर पास्ट लाइफ to be able to understand that where is the root cause of your suffering. ठीक है, और उस रूट कॉज को हम प्रोब करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्लाइंट्स को हील करते हैं, उनको डाउनलोड्स देते हैं. सो बेसिकली जो पास्ट लाइफ हीलिंग का जो प्रोसेस होता है, इट इज़ अ लिटिल टेक्निकल प्रोसेस वेयर वी आर कनेक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ द क्लाइंट्स एंड वी आर फाइंडिंग आउट दैट वेयर इज द रूट कॉज of Okay. that problem coming. It could come from the childhood, it could come from the mother's womb, or it could come from some previous past life. Okay, तो ये what type of issues or challenges do people typically seek past life healing for? See, past life healing can be done for any kind of issue in your life. चाहे आपकी कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, अगर आपकी ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मैं स्टक हूँ, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, you know, so you can do past life healing for any kind of issue. So चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड इशू है, मनी रिलेटेड इशू है, कोई रिलेशनशिप इशू है. कितनी बार लोग आते हैं और वो कहते हैं मैंने इस इंसान को बहुत प्यार किया, बट यू नो दे डोंट रेसिप्रोकेट दैट लव, दे डोंट डू एनीथिंग बैक फॉर मी. तो कुछ वो कार्मिक अकाउंट उस इंसान के साथ होता है जिसके कारण वी एक्सेस देयर पास्ट लाइफ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कार्मिक कनेक्शन बिटवीन दोज पीपल, यू नो. फिर चाहे वो आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज से अगर आप सफ़र कर रहे हैं एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई आई अट्रैक्टेड दिस सिचुएशन, या फिर आपके कोई कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, फियर रिलेटेड इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास हैं जो आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई मी. सो एवरी टाइम यू वांट टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी, you can contact a tarot, you can contact a past life healer and you can get yourself healed. Sure, wonderful. मैम कोई मेमोरेबल या profound experience शेयर करिए while facilitating past life healing. All right. See, मेरे 14 years के करियर में I have healed numerous number of people. So as it is, किसी बहुत कोई पर्टिकुलर केस को रिकॉल करना अभी मेरे लिए इतना आसान नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू गिव यू एन अकाउंट ऑफ वन पर्टिकुलर केस जो यू नो दैट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी, और वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी. सो देयर वाज दिस पर्सन, ही वाज एन ओल्ड मैन एंड ही हैड कम फॉर अ पास्ट लाइफ हीलिंग, क्योंकि उनके जो बेटे थे, 21-year-old चाइल्ड दैट ही हैड, ओनली सन ही हैड, यू नो, ही लाइफ लॉन्ग उन्होंने चाइल्डहुड से ही हैड सम हैंडीकैप इश्यूज एंड 21 years की एज में the son had left the world. So he was really very disturbed and he wanted to understand कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और why did his son leave him so early. So we did a past life healing session with that person and what we found out was very interesting. हमें ये पता लगा कि जो ये फादर और सन का जो रिलेशन था वो पिछले लाइफ में बेसिकली दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, और
जो सन था वो उसके साथ, इनके जो फादर अलग से हम उनको ए और बी करके Yeah, ले लेते yeah. हैं, तो ए और बी ने आपस में पिछले बर्थ में दे हैड डन अ बिजनेस टुगेदर. नाउ व्हाट हैपेंड वाज बी, जो इस लाइफ में फादर हैं, उन्होंने ए के साथ धोखा किया, उनके साथ फ्रॉड किया मनी मॉनेटरीली, और अपनी लाइफ में वो बिजी हो गए, बिकॉज ऑफ विच ए हैड टू गो थ्रू not only financial troubles, he had gone bankrupt, but also a lot of family issues. उनकी डॉटर की ठीक से वेडिंग नहीं हो पाई, बहुत सारे उनके डिजायर्स पूरे नहीं हो पाए, सो ही हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल एग्नी. सो इस लाइफ में, बिकॉज ही हैड टू रीपे द karmic account which he had created with A had chosen to come to him as a son. और जब उन्होंने वो हैंडीकैप सन बनकर वो आए, तो उन्होंने वो सारा जो फाइनेंशियली उनको जो लॉस हुआ था, जो उनको फाइनेंशियल, जो फिजिकल, मेंटल एग्नी हुई थी, ही हैड टू गो थ्रू एंटायर सेम थिंग दैट ही हैड गिवन टू द ए इन द प्रीवियस लाइफ. और जब उनका कार्मिक अकाउंट आपस में एक दूसरे के साथ क्लियर हो गया, सो एट 21 हिज सन लेफ्ट दिस Oh. वर्ल्ड. So this was a very eye-opener case for myself also, because this case was very very deep, and it gave us an understanding that जो इंसान अपने आप को विक्टिम समझ के बैठे थे कि उनके साथ कितना लाइफ में गलत हुआ है, भगवान ने उनके साथ कितनी नाइंसाफी की है, when he could find out that basically how this karma was created with his son. So it really helped him to heal himself on a very deeper level, and he could move on in life. So I'm sure these sessions must be very, intense in terms of emotionally, both, for the healer as well as the Exactly. person undergoing it. Yes, that is very true. I would say that every healer has to get into the skin of that client, क्योंकि कहीं ना कहीं every empath has to feel those feelings. So sometimes, yes, I would say that it indeed is very challenging for a healer, क्योंकि उनको अपनी healing भी करनी पड़ती है post a session, so as to disconnect from a client's case. And कभी कभी वो सारे intense emotions खुद में feel करने के बाद रिलीज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो दिस इज वाई सेल्फ हीलिंग फॉर एवरी हीलर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, so that they can keep themselves detached, and they can help the client in a very very unbiased way. Wonderful. मैम, क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं. क्रिस्टल हीलिंग के बारे में बताइए, एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड क्रिस्टल हीलिंग एंड हाउ इट इज बिलीव्ड टू प्रमोट वेल-बीइंग एंड बैलेंस इन द बॉडी एंड द माइंड. ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, दीज आर नेचुरल स्टोन्स विच आर फॉर्म्ड इन द अर्थ सर्फेस, दे आर फाउंड इन द अर्थ सर्फेस. और जो क्रिस्टल होते हैं, क्योंकि वो अर्थ से ही बने होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, दे हैव गॉट नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज. सो जब हमको ये, जब when the man found out that healing has got, these crystals have got natural healing Yeah. properties, so they started using these crystals for various alternate purposes. तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, I'm also wearing a lot of crystals in Yeah. my hand. Yeah. So इसी तरह से crystals को हम use करते हैं for various types of healings. और जब उन crystals को physical contact में, client के physical contact में लाया जाता है, तो वो naturally आपकी aura को, आपके chakras को बैलेंस आउट करते हैं, आपको हील करते हैं. और क्रिस्टल्स की पॉजिटिविटी से आप डेफिनेटली आपकी लाइफ के जो बहुत सारे इश्यूज पे भी फर्क पड़ता है. मैम, ये कैसे पता चलता है कि कौन सा क्रिस्टल या कौन सी क्रिस्टल टेक्निक किसी के लिए बेनिफिशियल होगी? ओके, सो जो क्रिस्टल हीलर होते हैं, उन्होंने क्रिस्टल्स को स्टडी किया होता है, और दे नो दैट एवरी क्रिस्टल हैज अ डिफरेंट रीजन. ओके. और हर क्रिस्टल का अपना पर्पस होता है. सो बेस्ड अपॉन देयर नॉलेज, देयर एक्सपीरियंस एंड देयर इंट्यूशन, अ क्रिस्टल हीलर फाइंड्स आउट कि कौन सा क्रिस्टल क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल होगा. होगा. सो समटाइम्स इट इज सेड दैट you don't choose a crystal chooses you. Oh, So that way. उस मोमेंट पे जो भी क्रिस्टल हीलर को बेस्ट आपके लिए सूटेबल लगता है,
क्रिस्टल टेक्निक या फिर क्रिस्टल पर्टिकुलर जो रॉक है या किस भी वे में, सो दे सजेस्ट यू एंड दैट इज यूज फॉर द हीलिंग ऑफ द क्लाइंट। और क्या स्पेशल केयर करनी पड़ती है इन क्रिस्टल्स की? क्रिस्टल्स की ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा केयर नहीं होती, बहुत मिनिमम केयर होती है, बट येस they need to be energized after a certain of period because crystals have a tendency to absorb your negativity. Oh, that तो way. क्या होगा कि जैसे कि अगर आप क्रिस्टल्स को थोड़े टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक गंदा कपड़ा रोज पहने और उसको हम धोए ना, बिल्कुल, सो ऑब्वियसली दैट विल स्टार्ट हार्मिंग यू, यू नो, हाइजीन इश्यूज हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप क्रिस्टल को, बिकॉज क्रिस्टल्स हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब योर नेगेटिव एनर्जी, अगर थोड़े टाइम बाद उसको क्लेंस नहीं किया जाएगा, एनर्जाइज नहीं किया जाएगा, देन व्हाट विल हैपन इज दे विल नॉट वर्क वेरी इफेक्टिवली फॉर यू। सो इट इज रिकमेंडेड कि जब आप क्रिस्टल खरीदें तो एक हीलर से एनर्जाइज करके उसको पहने, उसको एनर्जाइज करवा के पहने, और इवन आफ्टर वेयरिंग, यू नो, तो वंस अ मंथ एटलीस्ट हम रेकमेंड करते हैं कि किसी भी फॉर्म में, चाहे आप उसे मून लाइट में बाहर रख सकते हैं, यू नो, सो दैट मूनलाइट की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके क्रिस्टल्स हील कर सकते हैं, मतलब यू नो एनर्जाइज कर सकते हैं, या फिर आप उसको नॉर्मल अपने टेम्पल में भी रखकर आप उसे एनर्जाइज कर सकते हैं, या सनलाइट में रखकर आप क्रिस्टल को एनर्जाइज कर सकते हैं। बट इट इज रिकमेंडेड कि एटलीस्ट वंस अ मंथ और वंस अ फोर्टनाइट आप अपने क्रिस्टल्स को जरूर क्लीन करिए सो दैट दे कैन वर्क वेरी इफेक्टिवली। वंडरफुल मैम, एक और मोडालिटी के बारे में बात करते हैं। टेल अस अबाउट दी स्विच वर्ड्स, इसके बारे में कुछ बताइए, एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच वर्ड्स एंड हाउ दे आर बिलीव्ड टू वर्क फॉर मैनिफेस्टिंग डिजायर्स एंड ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस। ऑलराइट, सो देखिए, क्रिस्टल्स जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली हमारे मॉडर्न डे मंत्रास होते हैं। जैसे हमारे एंशिएंट टाइम्स में ऋषि मुनीस हमेशा मंत्र को जाप करते थे एंड अपनी लाइफ में वो मंत्र जाप करके वो अपनी विशेस को मैनिफेस्ट किया करते थे। उसी तरीके से आज की लाइफ में स्विच वर्ड्स आर मॉडर्न डे मंत्रास which work on your subconscious mind. And when they are chanted repeatedly daily over a period of time, then they help you in manifesting that desire. Okay, तो इस तरीके से आप उन्हें यूज करके अपनी लाइफ में अपने डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। तो फिर मैम, you know, that brings me to another question, then what differentiates switch words from the manifestation techniques such as affirmations and visualizations? देखिए, अंडरलाइन प्रिंसिपल किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का सेम होता है, और वो मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल होता है कि आप एक चीज को बार बार अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करे एंड इट हेल्प्स यू इन मैनिफेस्टिंग दैट डिजायर। सो द अंडरलाइन प्रिंसिपल इज द सेम इन ऑल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, ठीक है, बट जो उसको करने का तरीका है, जैसे एफर्मेशंस को यूज करने का अलग तरीका है, स्विच वर्ड्स को चैंट करने का अलग तरीका है। सो जो टेक्निक है वो डिफरेंट है, बट आप तीनों को ही आप किसी को भी यूज कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। So what you're saying, the principle is the same? Yes. Wonderful. So एक पर्टिकुलर सिचुएशन या गोल के लिए कौन सा स्विच वर्ड अप्रोप्रिएट है, कैसे चूज और सेलेक्ट करते हैं? Alright. या ये सिर्फ हीलर ही बता सकता है? देखिए, उसके लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग one has to do at least a basic minimum switch word course to be able to understand the meaning and you know, क्योंकि हमारे हर एक रीजन के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए there is a different switch word, so there are lakhs and lakhs of switch word. तो इसीलिए जो हम switch word expert होता है, आप उनसे अगर आप बेसिक कोर्स कर लेते हैं तो एटलीस्ट कम से कम आप जो बेसिक स्विच वर्ड्स हैं अपनी लाइफ में फॉर द जनरल यूजर्स, आप उन्हें सीख सकते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में किसी भी पर्पस के लिए। वंडरफुल मैम, आप स्पिरिचुअल कोच भी हो, सो व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक और प्रोसेस यू सजेस्ट टू मेंटेन हाई एनर्जी लेवल्स? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल की डेट में this is something that everyone has to do. Yes. You know, this is a very, जैसे हमारी mental health बहुत important है, उसी तरीके से हमारी spiritual health भी बहुत important है, because it teaches us how to think in our life and give us a clear perspective about our life path. Absolutely, yeah. So मैं सबसे पहले ये suggest करती हूँ कि even अगर आप कोई
रिलीजियस प्रोसेस या टेक्निक को नहीं भी फॉलो करें तो एटलीस्ट स्टार्ट बीइंग माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स. Okay. Start spending time with yourself. So this is the first thing that you can do. क्योंकि जब आप थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स कि आपकी पूरे दिन की लाइफ में कितने आपके जैसे हम एक मेजॉरिटी अगर हम प्रीडोमिनेंट थॉट्स देखें तो अगर एक ले मैन अगर ये भी देखना शुरू कर दे कि मेरे मेजॉरिटी थॉट्स पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं तो वो अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं. सो उसी तरीके से यू कैन स्टार्ट with spending time with yourself without any gadgets, क्योंकि कितने लोग मुझे बोलते हैं कि हम अकेले टाइम स्पेंड करते हैं बट फोन ले लेते हैं, बुक ले लेते हैं. So that is not basically mindfulness. Mindfulness is that when you are sitting with your thoughts, when you are watching your thoughts, और आप ये देख पाते हैं कि मेरा जो thought है वो क्या मेरा thought चल रहा है. So you start with mindfulness and spending time. And then धीरे धीरे you can get into meditation. You can also do those people who are not good with meditation or those who have a problem with sitting still. They can do journaling. आप journaling कर सकते हैं, आप अपने thoughts को पेपर से लिख सकते हैं और उसको बाद में destroy कर सकते हैं. उसके बाद जो हमारे religious procedures हैं जैसे कि मंत्रा chanting या किसी भी तरह से आप switch words या कोई भी modality उनको आप यूज करके आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं. So what is that one piece of advice you'd want to give to somebody who's wanting to manifest his or her desire? देखिए, one piece of advice is to have 100% faith on whatever you are doing. तो चाहे वो आप अपने ईश्वर को मना रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, चाहे आप चैंट कर रहे हैं, चाहे आप स्विच वर्ड कर रहे हैं या एफर्मेशन कर रहे हैं, आप कोई भी टेक्निक को यूज कीजिए बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट विद अटमोस्ट फेथ. आपको उस चीज पे इम्प्लिसिट फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपका फेथ बार बार स्विच होता रहेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली manifest that thing in your life. I get that. So चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हैं but do it religiously over a period of time so that you can activate that mantra and then only you can manifest that desire in your life. Wow, that's a lot of learning on these very interesting healing modalities. Thank you for your time today, ma'am. पारुल जी से बात करके आज बहुत कुछ सीखने को मिला. We learned about tarot, past life healing, crystals, and even switch words. Which of these signs excites you the most? Share them in the comments below. और अगर आप भी कुछ डेली सक्सेस हैबिट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं and you feel that you need guidance and support, then reach out to me at my numbers mentioned below and let me personally coach you and train you for success in any area of your life through a very simple yet effective, scientifically tested 10-week program. Please subscribe to my channel if you haven't done so yet. Like the video if you enjoyed the conversation and also share it with your friends and family so they too can learn and get inspired. Please take good care of yourself and keep smiling till I bring you another inspiring story. Namaste and Jai Hind.